सर आप केरला से आए हुए हैं? ओह यस, मतलब ऑल द वे you have come from Kerala or you are we from have the traveled 4,000 kilometers and come here. only for this you have Yes, traveled? yeah. Oh, this is wonderful. I want to know that what motivated you to come for this? No, our children is also growing up. So these people actually deserve justice. They have not done anything. This government has been ruling us for the past 12 years. What have they done? They show roads, they show all these highways and all those things. But then the ED, CBI, they use all these things to bring in other parties leaders into their party, and then they are. It is like a washing machine. You are not. This is not new to you. Yes, yes. तो हम लोग उधर से आया इन लोगों को क्या है साथ देने के लिए इन लोग जस्टिस अभी इतना साल तक हम लोग सोचे जेंजी उतना क्या कोई आपको रेस्पॉन्स लगता नहीं है है कि जेनजिस के बारे में अब आपके ख्याल बदल गए? क्योंकि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो सोचते थे कि जेनजिस हाँ। सिर्फ फोन में लगे रहते हैं। हम लोग क्या हुआ हम लोग टॉलरेंट हो गया हाँ वही हुआ है हाँ इतना साल कुछ चेंज नहीं हुआ अभी ये लोग आगे आ गया ये लोग क्वेश्चंस पूछने लगा हम लोग जब क्वेश्चन पूछ रहे थे ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे थे बस ऐसे ही हम वो बिना कोई क्वेश्चन ही पूछा नहीं जैसे चल रहा था ये अभी जो सरकार है अभी भी वैसे ही चल रहा है अभी भी इनका क्या है पूरा पुलिस को लेके इनको दबाने का कोशिश कर रहा है वो गलत बात है आप ही तो सोचिए हम लोग मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं तो दैट इज द रीजन वी केम हियर वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम फुल्ली आई एम a congressman but then it is not being Congress or any yes. party this is something they deserve justice that has to be given to them the all these years no responsibility no accountability was shown by the government. May I know your name, sir? My name is Advocate Vivek Haridas. And you are from which I part am of from it? Kerala, Ernakulam, Cochin. I am a state president of Youth Brigade of Congress Sevadal. And you especially all the way came to participate Yes. and show the solidarity. Yes. आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग मणिपुर से भी आए हुए हैं और वो भी अपनी बात रख रहे हैं. Would you like to say something? For what reason you are here? And so basically I was here to join the protest regarding the NEET issue. But also on the sidelines, I'm here to raise the issue of Manipur, which has been ongoing since 2023 I would May. love to know, can you show what exactly the issue you want to raise through this? So since 2023, the ongoing violence between the ethnic clashes in Manipur, right, it has been going up till now, and there's no solution as of now. And I should mention the number of people who have been suffering. At least 300 people have died, and more than 60,000 people are still languishing in the relief camps without basic amenities. There is no peace at all. So I want the government to pay attention to this, to hear the people's voices, and bring justice and peace to the state of Manipur. Do you think that so far Manipur has been neglected by PM Modi? Of course, he has not said a word. He has not even visited the state. So he has completely ignored the people of Manipur. He has treated the people of Manipur as second-class citizens. And what is the present status there? The present status is that there is an imaginary boundary line between the tribals who are involved in the ethnic clashes. So there is no exchange of people at all, and there's no political dialogue at all, and there's no solution on the paper as well. ये जो सेवा आप कर रहे हैं लोगों के लिए, बच्चे आराम से हाँ सब लोग एक एक करके बच्चे आराम से आप छोड़ ही दीजिए, पकड़ लो हाँ 1 मिनट उनको लग जाएगी आप पकड़ ही लो कौन पिएगा पानी कौन पिएगा हाँ एक बार आप अपनी सेवा के बारे में थोड़ा सा ही बता दीजिए. बच्चे बैठे हैं जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही बच्चे. अच्छा तो आप कहाँ से आए हैं? हम तो जयपुर से आए हैं और आपने मतलब आप कुछ खाने के लिए भी लेके आए होंगे? हम दोनों भाई हैं. अच्छा हम अचार लाए अपने घर का बना हुआ अचार लाए हैं बच्चों के लिए, जिससे कि हमारे बच्चे इस प्रोटेस्ट के अंदर पूरी यानी जी जान से लगे रहें. हाँ. क्योंकि जो आज ये हालत हो रही है हमारे देश की वो पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी, लेकिन अब हद हो गई है. इस वक्त हद हो गई है इस हालत की कि नीट के ऊपर जो ऐसा हो रहा है
जैसे हमारे सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि भाई जब यहाँ पे इस तरीके से पेपर यानी कि लीक पेपर से जाएंगे पढ़ के, तो वो क्या इलाज करेंगे। और वो अभी भी हैं हमारे यहाँ, इससे पहले भी हैं, और ये हमेशा से होता है। लेकिन अब जो जनता जाग रही है, तो इसके लिए चाहिए कि भाई इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि जनता जाग रही है कि बिल्कुल जी। अच्छा, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, आपको जाग कैसे रही लग रहा है कि ये जनता जाग रही है और कुछ बदलाव की उम्मीद आपको हाँ लगती जी, है? बदलाव की देखो विश्वास पे दुनिया कायम है, हाँ जी। तो हम भी विश्वास पे ही आए हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि जनता जाग और रही है? होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्या बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही खत्म हो जाएगी या बात देखो अब जी, और आगे जानी चाहिए? शुरुआत तो होनी चाहिए ना, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफे का चलन नहीं है। यहाँ चलन नहीं है, तो हाँ। चलन हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद अब ये चलन कम से कम शुरू हो बिल्कुल जाए? शुरू होगा। ठीक। ठीक है जी, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? मैं तो बस यही कहूँगा। भाई आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ मेरा से? नाम सोनू नागर है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। तो मैं बस यही कहूँगा, इस बार मोदी सरकार ने गलत पंगा लिया है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया? एक्चुअली क्या है, जो मोदी है, इनका जो सबसे बड़ा मोटिव था वो था युवाओं का माइंड जो है ना वो वोश करना। ठीक है, इसी वजह से ये मोदी जो सरकार आई है या जो भी कुछ है ये वो युवाओं की बदौलत था। 2014 में युवाओं ने ही वोट हाँ, किया था, ये बात तो बदलाव सभी भी जानते उन्होंने हैं। लाया था हाँ। और वोट भी उन्होंने करी थी और उनका एजेंडा भी उन्होंने ही फैलाया था। बिल्कुल। और आज वही युवा है, उसने जो सोचा था उस पे तो वो खरे उतरे नहीं। और इनका जो मोटिव था वो ये था कि भाई आने वाले समय में जैसे किसानों के साथ हुआ, उनके बीच में अपने आदमी बैठा के पथराव करवा दिए, फिर कहा किसानों ने पथराव करा। ऐसे ही इनके बीच में भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के घुस के और गलत काम को कर रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं स्टूडेंट्स और युवा। तो मेरा कहना यही है, इस बार पंगा बहुत भारी, नंगा है मामला। बिल्कुल, हज़ारों लोग, हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों गालियाँ भी हैं। तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कुछ दिनों पहले तक जब हम इस प्रोटेस्ट को देख रहे थे, तो ऐसा लगा कि थोड़े टाइम के बाद ये प्रोटेस्ट चलेगा नहीं। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि 20 तारीख को लोग आएंगे नहीं, लेकिन 20 तारीख को जो जल सैलाब आया, उसके बाद लोगों की उम्मीदें, लोगों की सोच जैनजीज़ को लेके, इस प्रोटेस्ट को लेके पूरी तरीके से बदल गई। अब कई लोगों को लगता था कि अब रैली हो गई, अब उसके बाद क्या, लेकिन अब तो कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। आप टाइम के साथ देख सकते हैं कि पिछले 4-5 घंटे में मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों का हुजूम यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। लोग यहाँ पे एक दूसरे की जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं, खाने को लेके, पानी को लेके, पंखा एक दूसरे के ऊपर हिलाना और छोटी छोटी चीज़ें, कूड़ा उठाना। यहाँ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पेरेंट्स आए हुए हैं, यहाँ हाउसवाइफ आई हैं, यहाँ लॉयर्स आए हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स आए हैं, यहाँ पे मॉडल्स, एयर होस्टेस और बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग आए हैं। अनकंडीशनली वो सभी के सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो किस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये एक मंच बन गया है हर तरीके के कुरीतियों को, हर तरह के डिस्टर्बेंस को, हर तरह के इनजस्टिस को टारगेट करने का। कोई मणिपुर के लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई जो धर्म के नाम पे इस देश में एक बंटवारा चल रहा है, कोई उसको इस पे टारगेट कर रहा है, और कोई इसके थ्रू एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहता है, तो कोई ये चाहता है कि सरकार उनकी बात सुने और एक बेटर गवर्नेंस, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। इन वीडियोस में आप देखेंगे लोगों की अपनी पर्सनल आप बीती, टेस्ट मनी, सफरिंग, उनके एस्पिरेशंस, उनके मोटिवेशंस और वो क्या चाहते हैं इस प्रोटेस्ट से। अभी क्या होगा इस प्रोटेस्ट में, ये तो आगे हम देखेंगे टाइम के साथ, और हम टाइम के साथ ये देखेंगे कि प्रोटेस्ट कैसे अनफोल्ड होता है और इसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो याद रखिएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो ये सोच रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट अब अपने ख़त्म होने की कगार पे है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तो असली मामलों में अब शुरू हुआ है, जहाँ पे हर एक इंडियन यहाँ पे आके लोगों से बात कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है और अपनी एकता, एकजुटता दिखा रहा है। तो इस बात के साथ मैं शोरगुल मीडिया से जीत, और देखते रहिए शोरगुल मीडिया।